ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایران نے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی حکام نے علی لاریجانی کے بیٹے مرتضیٰ کے شہید ہونے کی تصدیق کی۔ اس سے پہلے علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہاتھ سے لکھا پیغام جاری کیا جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسرائیل نے گزشتہ روز ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ شہید علی لاریجانی عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے۔ ایران کے پاسداران انقلاب میں شمولیت کے بعد انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر نمایاں مقام حاصل کیا۔ وہ ایران کی داخلی سیاست، پارلیمنٹ اور خارجہ پالیسی میں طویل عرصے سے بااثر کردار ادا کرتے رہے۔ علی لاریجانی انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم سیاسی شخصیات میں شامل تھے۔ علی لاریجانی ایران کے طاقتور مذہبی اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ صدارتی سیاست میں سرگرم رہے، متعدد بار صدارتی انتخابات میں اہم امیدوار رہے۔ شہید علی لاریجانی نے بطور اسپیکر پارلیمنٹ 12 سال تک مجلس شورا کی قیادت کی۔ وہ ایران کے چیف مذاکرات کار برائے جوہری پروگرام بھی رہ چکے ہیں۔ ایرانی فورسز نے قومی سلامتی کے سیکریٹری علی لاریجانی کی شہادت کے بعد وسطی اسرائیل پر کلسٹر میزائلوں سے بڑا حملہ کیا ہے جس میں جانی نقصان ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے وسطی اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا جس کے نتیجے میں تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے۔ ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک کلسٹر میزائل فضا میں پھٹا اور اس کے جلتے ہوئے ٹکڑے وسیع علاقے میں پھیل گئے جس کے اثرات تل ابیب کے مختلف علاقوں میں دیکھے گئے۔ یروشلم، رامات گن اور بنی براق سمیت مرکزی اسرائیل کی مختلف مقامات پر بھی نقصانات کی اطلاعات ہوئیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ایک 70 سالہ مرد اور خاتون ہلاک ہو گئے جو کسی محفوظ پناہ گاہ میں موجود نہیں تھے۔ شارون کے علاقے میں کم از کم 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی اسرائیل میں ایرانی میزائل حملوں سے بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا، جبکہ ایرانی میزائلوں سے کم از کم 4 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تو دوسری جانب حزب اللہ نے گزشتہ چند گھنٹوں میں اسرائیل اور اس کے اہلکاروں پر درجن سے زائد حملوں کا اعلان کیا۔ گروپ کے ٹیلی گرام چینل پر جاری بیانات کے مطابق حزب اللہ نے اطلیت بیس پر اسرائیلی فوج کے بحری یونٹ کو نشانہ بنایا جو حیفا کے جنوب سے واقع ہے۔ اہلکاروں نے اسی بیس پر خصوصی میزائلوں کی بوچھاڑ کی اور حزب اللہ نے جنوبی لبنان اور اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں کی گروپوں کو بھی نشانہ بنایا۔ لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے علی لاریجانی کو ایک ممتاز قابل قدر شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا، اسلامی جمہوریہ ایران کی زندگی بھر مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں اور ملک کی ترقی و قومی پالیسی سازی نمایاں کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر نے واضح کیا، علی لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کا نظام مضبوط، یہ شخصیات کے جانے سے کمزور نہیں ہوتا۔ نظام میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے ایران کمزور نہیں ہوگا؟ ایران نے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی کمانڈ ان چیف نے کہا کہ علی لاریجانی کی شہادت پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ عظیم شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی کو ممتاز شخصیت، مفکر، انقلابی رہنما قرار دیا۔ کہا، شہید علی لاریجانی کا خون دیگر شہداء کی طرح عزت، طاقت، قومی بیداری کا سبب بنے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ وہ علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کو ہرگز نہیں بھولیں گے اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایران خلیجی ممالک اور ہمارے لیے خطرہ ہے۔ نیٹو ایران جنگ میں ساتھ نہ دے کر احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ ہمیں آبنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ جوہری ہتھیار حاصل کر چکا ہوتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ علی لاریجانی کو گزشتہ روز حملے میں مار دیا گیا ہے۔ علی لاریجانی ایران میں مظاہرین کے قتل عام کے ذمہ دار تھے۔ برطانوی وزیر اعظم کے بیان پر بہت مایوسی ہوئی۔ ہم ابھی ایران جنگ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، مگر مستقبل قریب ہے، اس جنگ سے نکل سکتے ہیں۔
ईरान ने अबनाए हुर्मस से भारतीय जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने के लिए शर्त रख दी। ईरान ने भारत के सामने मुतालबा रखते हुए कहा कि भारतीय जहाज़ों को अबनाए हुर्मस से गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। ताहम भारत ने ईरान की जानिब से मुतालबा किए जाने की तरदीद की। ईरान के तेल से भरे 3 जहाज़ भारत ने जंग शुरू होने से पहले इस वक्त कब्जे में लिए थे, जब भारत के अमरीका के साथ तिजारती डील हो रही थी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अपने 3 बहरी जहाज़ों की वापसी के साथ भारत से दवाओं और तिब्बी आलात की फराहमी का मुतालबा भी किया है। इस वक्त 22 भारतीय बहरी जहाज अपना हुर्मस में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। आलमी मालियाती इदारे ने स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF का $7 अरब प्रोग्राम के तहत मज़ीद सख्त निगरानी का इम्कान है। IMF ने टैक्स चोरी रोकने के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ कराने, डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत कर दी। IMF ने रिस्क बेस्ड ऑडिट लाजमी करार देने की तजवीज़ दे दी, जबकि IMF ने FBR के टैक्स अहदाफ पूरे ना होने पर तशवीश का इजहार किया। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मज़ीद शराइत आयद कर दी। IMF ने सिर्फ वादे करने के बजाय अमली नताइज दिखाने का मुतालबा कर दिया। FBR ने भी फैक्ट्रियों और दुकानों की पैदावार और फरोख्ती निगरानी सख्त करने की ठान ली है, जबकि कारोबारी सेल्स को ऑनलाइन रिपोर्ट करना लाजमी बनाने का फैसला कर लिया गया। हुकाम FBR के मुताबिक इस वक्त सिर्फ 1/3 कारोबार मुकम्मल डाटा फराहम कर रहे हैं, जबकि टैक्स ऑडिट से मखसूस आमदन हासिल करने का हदफ मुकर्रर करने का इम्कान है। जबकि हुकाम FBR के मुताबिक टैक्स दहिंदगान के अदालत जाने से वसूली में मुश्किलात का सामना है। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक मुज़ाकरात में इत्तफाक की सूरत में जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा इम्कान है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कोरंगी से टोपी गैंग के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद जफर, साजन, मोहम्मद वकार, दानियाल, शाहजेब, शाहिद, मोहम्मद इस्माइल शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से एक बगैर लाइसेंस पिस्तौल, बम गोलियां, 2 खिलौना पिस्तौल, 8 मोबाइल फ़ोन, नकदी बरामद। मुल्जिमान 2018 से डकैती, स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल चोरी, जेब तराशी समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। रेंजर्स के मुताबिक ये गैंग सिंध भर में 900 से ज़ायद वारदातों में मुलविस है। कराची के कायदाबाद, भैंस कॉलोनी, मंजिल पम्प, बिलाल कॉलोनी समेत बड़े रूट्स पर मुसाफिरों और घरों से डकैतियां करता रहा। मुल्जिम मोहम्मद जफर को डकैती की वारदात के दौरान CCTV फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। तमाम मुल्जिमान को असलहा बरामद शुदा सामान के साथ मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक्सपो सेंटर में लगे ईद बाजार का दौरा किया है। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली असद नियाज़ी, ताजिर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। दौरे के दौरान नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब ने सानहा गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात का जायज़ा लिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी और वफाकी और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से मुतासरा दुकानदारों के लिए स्टॉल्स कायम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुतासरा दुकानदार आइंदा ईद तक अपनी दुकानों में कारोबार करेंगे और सूबाई हुकूमत ताजिर बरादरी और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। नासिर हुसैन शाह ने यह भी वाज़ेह किया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि सानहा गुल प्लाजा की मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए। ये इकदाम सानहा गुल प्लाजा की मुतासरीन को सहारा देने और कारोबार की बहाली में मदद फराहम करने के लिए किया गया है। ईरान जंग ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब बन गया। अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी साथ छोड़ने लगे। अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल टेररिज्म सेंटर ईरान जंग पर मुस्तफ़ी हो गए। जोकैट ने कहा कि सोच विचार के बाद मैंने इस्तीफ़ा दिया। ईरान से जारी जंग की हिमायत नहीं करता। ईरान से अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं। अमेरिका ने इसराइल लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमेरिकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। दूसरी जानिब ईरान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ, जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल बिलख़ुसूस आबनाए हुर्मस से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबनाए हुर्मस की सूरत हाल को जंग से अलग नहीं देखा जा सकता और दोनों मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जोर दिया कि अमन के ख्वाहा ममालिक को ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत की मज़म्मत करनी चाहिए। आलमी बरादरी को खित्ते में अमन के क़याम के लिए मौसर किरदार अदा करना होगा ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके।
मुल्क की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहर्रिक हों, हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिक़ा इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायत शियारी इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती काउंसिल की तंज़ीम 9 की उसूली मंजूरी दे दी, जबकि टाइम लाइन के साथ PARC की तंज़ीम 9 पर जामे प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा कि PARC को चीन की अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के तर्ज पर ज़रई तहक़ीक़ के हवाले से आला तहक़ीक़ाती इदारा बनाया जाए। ज़रई तहक़ीक़ का मुल्क की ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे को फ़रोग़ में कलीदी किरदार है। कम मुकाबला साख खानपुर में ईद उल फितर की आमद के साथ ही शहर भर में गहमा गहमी अपने उरूज पर। एक जानिब ख़वातीन ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ नौजवान भी किसी से पीछे नहीं। खानपुर के जोशीले नौजवान हेयर सैलून्स में पहुंच चुके हैं और बने संवरने में मसरूफ़ हैं। नौजवानों का कहना है कि वो भी किसी से कम नहीं और ईद पर बेहतरीन लुक के साथ नजर आना चाहते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक वसीम एक हेयर सैलून पर शहरियों के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने बनने संवरने और खूबसूरत नजर आने के लिए हेयर सैलून का रुख कर लिया है, जहाँ पे कोई कटिंग करवाते नजर आ रहा है तो कोई फेशियल करवा रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद इस बारे में क्या कहना है। जी यार, ये कैसी जा रही है इसकी आप? जी बिल्कुल ठीक जा रही हैं और हम यहाँ पर आए हैं कटिंग वगैरह फेशियल वगैरह करवाने के लिए। हम भी औरतों से कम नहीं है, ईद के मौके पर हम उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। जी बिल्कुल, हम भी औरतों से कम नहीं हैं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। मेरे साथ एक हेयर ड्रेसर भी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस बारे में इनका क्या कहना है। जी बताइएगा, क्या डिमांड कर रहे हैं शहरी? माशाल्लाह से बहुत ही रश है। शहर कोई आ रहा है फेशियल करवा रहा है, कोई हेयर कटिंग करवा रहा है, कोई कलर लगवा रहा है, कोई स्किन पॉलिश करवा रहा है, तो कोई स्टिकिंग करवा रहा है। सब कहते हैं कि मैं भी खूबसूरत दिखूं, और सबकी यही ख्वाहिश है कि हम भी औरतों से ज़्यादा खूबसूरत दिखें। और हमने नो बुकिंग के बोर्ड भी लगा दिए हैं ताकि किसी को बाद में कोई परेशानी ना बने। कोई कटिंग करवा रहा है तो कोई फेशियल करवा रहा है, हम भी औरतों से कम दिखाई ना दें। शहरियों की बड़ी तादाद हेयर सैलून पर मौजूद है, बनने संवरने में मसरूफ़ है। जी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।